So today happens to be World Astronomy Day. तो वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे पे आपको पता है डीपीएस इज ऑल अबाउट गिविंग एक्सपीरियंसेस. तो हम चाहते हैं ये जो स्पेस का एक्सपीरियंस है, स्टार्स एंड ब्रिंगिंग द एंटायर गैलेक्सी डाउन टू द चिल्ड्रंस लेवल सो दैट दे लर्न एंड दे नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस. तो कोशिश ये है कि बच्चे हमारा ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करें आज यहाँ पर जो वो जिंदगी भर याद रखें. गैलेक्सी का सीन है जो अंदर हम देख पा रहे हैं. यह डार्क रूम बनाया हुआ है डीपीएस पब्लिक स्कूल की तरफ से, जो बच्चों को पूरी गैलेक्सी का घुमाते हैं. What about the night sky? What about the stars? Do they also change season, right? Yes, Swati, they do. Except one star that is present in our night sky in all seasons. I guess it is Pole Star or Dhruvtara. Good, you have guessed it right. That is the speciality of the pole star. That is what makes it so famous. Grandpa, your night sky is so beautiful. With stars all around, it looks like your house is in the sky. Why can't we see these many stars in Delhi? Why? There is too much of light from streets, houses, offices and malls in big cities that it makes the sky hazy. The haze covers most of the stars. Only some very bright stars can be so difficult. Sometimes it is possible to see 7. Let us count them again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. In different parts of the world, people call this group of stars with different names. In Alaska, in North America, the group is called Big Bear or Ursa Major. I remember now that this group of stars is there on the flag of Alaska. And so is Polaris, the pole star. The big... It is 7 chicks. A fan with a long handle in many other parts. A line connecting the 2 stars at the front of the dipper. Continue the line to the open side of the dipper. At a distance 5 times that between the 2 stars, you will arrive at the pole star. The 2 stars of the dipper that point towards the pole star are also called pointer stars. जो भरमंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे. ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀਪੀਐਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡੀਪੀਐਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਪੀਐਸ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ
ਹੋਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈ DPS ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Sir, today happens to be World Astronomy Day. तो World Astronomy Day पे आपको पता है DPS is all about giving experiences. तो हम चाहते हैं ये जो स्पेस का एक्सपीरियंस है, stars and bringing the entire galaxy down to the children's level so that they learn and they never forget this experience. तो कोशिश ये है कि बच्चे हमारा ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करें आज यहाँ पर जो वो ज़िंदगी भर याद रखें, तारों से जुड़ के कहते हैं ना stars and sky like that. क्या खास बात है इसमें? सर ये हम एक मोबाइल प्लानिटोरियम लेके आए हैं, दिल्ली से हमने खास मंगाया है। इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन राजपुरा, ऐसा नहीं हुआ है। तो आप भी अगर आएंगे अंदर देखेंगे और आप बच्चों से आप देख सकते हैं एक्साइटमेंट बाहर जितनी आवाज़ आ रही है बच्चों की एक्साइटमेंट की, तो अंदर बैठकर पूरा एक ऐसा माहौल है जैसे कि आप एक तारों की छाँव में बैठे हैं और कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड इन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है हमारे बच्चों के लिए। वो अंदर यानी कि 3D इफेक्ट्स दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मूविंग स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सन कहाँ से राइज होता है, कहाँ सेट होता है, डायरेक्शन कैसे आप बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि अगर आपके पास GPS नहीं है, हम टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंड करते हैं आजकल, तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो आप एक स्टार से कैसे डायरेक्शंस पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और टू कनेक्ट विद दिस नेचर एंड यूनिवर्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर एंड टीचिंग देम दिस थिंग। पढ़ने की बुक में एक चैप्टर की बजाय ये एक एक्सपीरियंस उनको 45 मिनट्स का हर एक स्लॉट को दिया जा रहा है, एज अप्रोप्रिएट, ताकि वो ज़िंदगी भर उनके साथ रहे। DPS पहली बात तो सर हमने ये एक्सपीरियंस अपने ही बच्चों तक सीमित नहीं रखा, हमने ये इनविटेशन पूरे राजपुरा को दिया है, पूरे एरिया में दिया है, कम वन कम ऑल, सब लोग आएँ और ये एक्सपीरियंस हम ही क्यों गेन करें, हम चाहते हैं कि सभी लोग इस तरह के एक्सपीरियंस से सीखें। एंड ऐसा मैंने पहले नहीं देखा। आई विश व्हेन आई वाज इन स्कूल अगर ऐसा कुछ दिखाया होता तो मुझे बड़े होकर कोई प्लानिटोरियम में नहीं जाना पड़ता। तो ये चीज़ एक बच्चों के लिए बहुत ख़ास है और आई एम श्योर आप आवाज़ सुन रहे हैं बाहर, बच्चे इतना मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत एक लास्टिंग एक्सपीरियंस रहेगा। मैम आज के दिन के ऊपर लोगों को या बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा सारे बच्चों से, पेरेंट्स से, एजुकेशन से यही है कि एक रोट लर्निंग की बजाय अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस के थ्रू दिखा सकते हैं तो उसका इफेक्ट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग, इट विल स्टेज इन योर माइंड एंड मेमोरी फॉर एवर। सभी की बचपन की कोई ना कोई यादें होती हैं जो हमेशा उनके साथ रहती हैं। तो ये एक आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसी याददाश्त बनेगी हमारे बच्चों के लिए कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। सो दिस इज बच्चों में कितना आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था और मतलब एग्ज़ाम कराना मेरे लिए मुश्किल हो गया। सो चिल्ड्रन वाज सो एक्साइटेड टू कम टू द प्लानिटोरियम एंड सी, और कंटिन्यूसली मुझे ये फिक्र है कि आज का एग्ज़ाम पता नहीं इन लोगों ने कैसे किया होगा। आई होप दे हैव डन वेल, ये नहीं कि पेपर जल्दी करके हम चले भागे अंदर देखें। थैंक यू सो मच सर। ये प्लानिटेरियम या तारामंडल इसे हम कहते हैं। इसमें क्या है कि बच्चों को अगर तारों के बारे में या चंद्रमा, जो चांद के जो फेजेस, जो मून हम कहते हैं कि पूर्णमासी, अमावस्या, फिर वो घटना बढ़ना, सप्तमी, अष्टमी, जो तिथियां होती है हमारी, तो वैसे अगर बच्चों को हमें समझाना हो तो हमें वो शाम या रात करनी होती है। कुछ तारों के बारे में, तारामंडल या कॉन्स्टलेशन हम जिन्हें बोलते हैं, और फिर उस रात में ये भी होना चाहिए कि मौसम भी ख़राब ना हो। तो उन बड़े बच्चों को भी अब इतनी नहीं कर सकते, और जो प्राइमरी के बच्चे हैं, 5वीं तक के बच्चे हैं या पहली दूसरी क्लास के, नर्सरी के, उनको तो और भी कठिन हो जाता है बताना। अब जब हम थे, मैं अपने समय की बात कर सकता हूँ, हम तो छतों पे सोया करते थे। आज से 30-35 साल पहले बिजली भी नहीं आया करती थी, तो वैसे ही छत पे सोया करते थे। तो हमारे पिताजी हमें बता दिया करते थे।
या दादा दादी होते थे वो बता देते थे। तो अब क्योंकि बच्चों को अब हम फूलों और सबके बारे में सब बताते ही हैं उनको कि कौन सा फूल है, कैसे है, उसके लिए स्कूल में फूल लगाए जाते हैं या हम घर में बताते हैं उनको। जैविक विज्ञान भी, पेड़ पौधे सब काफ़ी स्कूल लगाते हैं, अभी स्कूल में भी लगाए हुए हैं, और वो बताते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन तारों के बारे में हम बता नहीं रहे। और एक दूसरी बात ये भी होती है कि तारों से ही जो एक जिसे हम प्योर साइंसेस कहते हैं ना, विज्ञान में जो रुचि है, वो जब एस्ट्रोनॉमी में रुचि आती है तो विज्ञान में भी अपने आप रुचि आती है। अच्छा, ये होते हम देख रहे हैं आसपास, तो बच्चों ने वो देखना और वो ना उनको फिर दिखना भी कम हो गया। अब चलो यहाँ तो मैं फिर भी कहूँगा जो गांव में रहते हैं उनको, लेकिन जो बिल्कुल प्रॉपर राजपुरे में या शहर में होंगे उनको फिर तारे वैसे भी नहीं दिखते होंगे। तो इसके साथ हमारा ध्येय क्या है कि हम उनको वो तारे दिखाएं। जैसे आप जो ये शो देख रहे थे अभी ध्रुव तारा की, ध्रुव तारा को कैसे ढूंढे, उसमें तारामंडल के बारे में बताया, कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया। इससे पहले जो फिर हमने ये अब हो गया लास्ट 4th के लिए, कक्षा 4 के लिए। उसी तरह से 1st 2nd के बच्चों के लिए हमने वो मून के फेजेस के बारे में बताया। उससे पहले लोगों को ये बताया, लोग भी तो कहते हैं चांद ऊपर है पृथ्वी नीचे है। तो उनमें जो छोटे बच्चों का एक शो था उसमें ये दिखाया पप्पी ऑन द मून, उसमें बताया भाई यहाँ से जब मून पे जा रहे हैं, अब उनको कार्टून के दिखाने के लिए ऐसे बता दिया कि भाई ये कुत्ते के साथ गया, वो कुत्ता चला गया एक अपनी जो उसकी ओनर या माँ बोल मालकिन बोल रहे, माँ बोल रहे, जो भी बोल रहे, उसके वो ट्रंक में बैठ के एस्ट्रोनॉट है, तो वो उसके साथ चांद पे चला गया। तो वहाँ से उसे पृथ्वी नीचे दिख रही है। तो अप डाउन का कंसेप्ट हो, ये थोड़ा बच्चे मतलब एक इससे एक समझ लेते हैं, क्योंकि इसको हम एडुटेनमेंट बोलते हैं। एक एंटरटेनमेंट भी होती है, बच्चे थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, थोड़े बीच में गाने या उसमें से एक डालते थे जहाँ ये बच्चे इस चीज़ को समझ भी सके और एंटरटेनमेंट के लिए वो करे भी अपना।